Good morning, sir. Yes, good morning, Ravneet. One question was asked by a student. That question was there. Basically, we have to input the name of students and their corresponding marks in 5 subjects, and then to display that data using dictionary. So we want this sort of output, like the name is Harpreet and is corresponding 5 subjects marks. Then is the name of the student is Ramesh and is 5 subject marks, like this. So we have already done this sort of program, but this is basically now here we have to make use of the concept of list as well. So we started the program with this student dictionary, clear blank dictionary, and then we ask the user to input the, this is for how many number of students we want to input. Number of students to be inputted. Then this is the loop from 0 to, that is the number of students that we have. Then we ask the user to input the name of the students for whose 5 subjects marks are to be recorded. And then this is a very important step. That is to have a blank list. Yes, sir. बता सकते हो why we have taken this blank list? So to input the marks of the student. Yes. So जैसे हमें ये 5 subjects के marks चाहिए, clear? So we have started a inner loop, clear, from 0 to 5. So what we have said that जो हम marks यहाँ पे input करेंगे, वो इस list 1 के अंदर हम क्या करते जाएंगे, एक करके append करते जाएंगे 5 subjects के marks. और बाद में हम क्या करेंगे, उस डिक्शनरी को हम असाइन कर देंगे, that is name will become the key and these marks will become the corresponding marks of the student, like this. So now the indentation has to be also used very carefully. So let's try this one out. Let's say we have number of student is 2 and it starts with the student name is, then we input the marks. So these are the 5 subjects marks we have inputted. The second name is so this is how the number of students are inputted and their corresponding marks are also inputted. So this is also very important question that we have, because here we have to make use of the list and this dictionary concept side by side. Both the concepts are used here. Sir, I was also having a doubt in one question. Hani. So that was to calculate the maximum and the highest and the lowest value in a dictionary. Highest and lowest value. Yes, sir. Highest to lowest तो ये तो simple ही है. एक लिस्ट जो है रेडीमेड लिस्ट ले लेते हैं, that is. Sir, in a dictionary. In a dictionary. Yes, sir. Okay.
अब हाईएस्ट वैल्यू इसमें पॉपुलेट हमने किस वे से करनी है, दैट इज वी हैव टू मेक ए so we need a key also. सर डिक्शनरी खुद ही एंटर कर लेते हैं और उससे इजीली पहले ट्राई कर लेते हैं। हाँ हाँ वही कर देते हैं, नेम एंड मार्क्स ही ले लेते हैं। ठीक है, फॉर इसमें ट्रैवर्सिंग का मैकेनिज्म लगेगा फॉर डिक्शनरी। एक बार हल्का सा जस्ट टेक ए एक बार हम हल्का सा ये ट्रैवर्सिंग वाला मैकेनिज्म देख लेते हैं, हाउ वी ट्रैवर्स दी this is traversing. So for I dictionary, क्या लगाएंगे कंपैरिजन के लिए मैकेनिज्म? सर एक वैल्यू को स्टैंडर्ड ले लेते हैं, जैसे डिक्स आई को उसको सबसे कंपेयर करते रहेंगे फिर। अच्छा इसके बेसिकली एक पहले हम इसको एक बार ट्रैवर्स कर लेते हैं वन एंड this is the program to find the maximum and minimum value in a okay, so just we try to traverse all the values। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है जी, वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। दिस वन इज कंपेयर्ड विद द नेक्स्ट वन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस डिक्ट वन को क्या कर लेते हैं हम, इसको मैक्सिमम अज्यूम कर लेते हैं। Will it work here?
एक बार इसको पहले प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट होता गया ऐसे। क्योंकि इसमें हम सबस्क्रिप्ट वाला ऐसे कंसेप्ट यूज कर नहीं सकते। लेट्स हाँ जी यस पुष्प। सर वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम हाँ जी वैल्यू इन डिक्शनरी। सर फिर हम प्रिंट मैक्स डिक्ट वैल्यूज ऐसे कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन ही लगा दे सीधा। सर बट डिक्शनरी में नहीं लगेगा ना मैक्स फंक्शन। चलो इसने बोला है तो एक बार लगा के देख लेते हैं। मेरे को भी लगता है कि ऐसे यूज किया है। नो सर वेट, फिर हम डिक्ट के आगे डिक्ट वन डॉट वैल्यूज, ये हमें वैल्यूज में से फाइंड आउट करना। एंड देन ब्रैकेट, फिर आगे दो ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस आएंगे ना। यस और ऐसे ही मिनिमम के ऊपर कर लेंगे। दिस इज हाउ टू यूज ऑल दी फंक्शंस। और कीज के ऊपर करना है हमने, तो कीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिक्शनरी को हम फाइंड आउट करेंगे, दैट गिव यू दी बेसिकली दी वैल्यू ऑफ दी। ये की में से मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा बिकॉज जे कीज के लिए भी है हमारे पास। क्या था इसके लिए फंक्शन कीज? नहीं, इसको देख ही लेते हैं। वी आर हैविंग दी मेथड फॉर दिस वन आल्सो। How to manipulate with the values and how to manipulate with the key. So KEY as function है हमारे पास। So KEY as function है। Clear? So we can manipulate with on the both sides. ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था दैट इज दिस इज द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मिस्टर पुष्प। सो पुष्प जो आपने क्वेश्चन पूछा था दैट इज हाउ टू बेसिकली फाइंड आउट दी basically to input the students and their corresponding marks in 5 subjects. So first we have taken a blank dictionary, then we asked the user to input the number of students, then we started the loop for as many number of students we have, then we asked the user to input the name. Clear? Then is we have, this is important step, that is to have a blank dictionary. जैसे हमने ये जो blank list, जैसे हमने ये मार्क्स स्टोर करने हैं तो इस मार्क्स को स्टोर करने के लिए हमें एक लिस्ट चाहिए। तो वी हैव स्टार्टेड विद द ब्लैंक लिस्ट और फिर एक हमने इनर लूप चलाई इस स्टूडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग और हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कर लिए विद द हेल्प ऑफ दिस अपेंड मेथड इनटू दिस लिस्ट वन और बाद हमने ये लिस्ट वन जो है वो उस कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट को असाइन कर दी। तो दिस इज ए बेसिकली ये डिक्शनरी। तो ये नेम जो है दिस विल एक्ट एज ए की and this marks are the values. ठीक है, और एक इसको ट्राई करके देख लेते हैं। That's we have, let's say so first we have to input the number of students, let's say 2, name is Harpreet and 5 subjects are okay।
So then the second name is so these are the two students. जितने भी आप student input करोगे and their corresponding value will be stored in the form of a list. Clear? बाकी ये सारे प्रोग्राम जो है that is you can do the programming only with the help of practice. We cannot do this by cramming the questions. And the help that you have is that is you go through the this list which is given in the syllabus. ठीक है, कौन कौन से ये तो प्रोग्राम हमारे पास होने चाहिए, बट वी शुड हैव ऑल दोस programs in the practical file also. So what are those programs? To find the average of given marks, and then is the we have done the sale price based on the cost. Then is to calculate the perimeter of different shapes, calculate the simple and compound interest, profit and loss. Clear? And so yes, Ravneet. Sir, actually, there is one question that is to print the number of words starting with a particular alphabet. Sir, I have tried that question with a different mechanism, and sir, I am not getting the right output. Can I share that source code with you? हाँ हाँ कर दो, व्हाट्सएप कर दो. Yes, sir, 1 second. एक्चुअली क्या है प्रोग्राम्स के केस में दैट you don't have any closing marks now. You can have any number of programs. So that's depends upon your area of interest, how you are working on that. But the bottom line is there that these programs we have to do under all circumstances. This is for everyone. ये भी this has been mentioned that this is the minimum list. Where we can have more programs also. So create a dictionary like the program you asked. This was this one. Create a dictionary of students to store names and marks obtained in 5 minutes. Sir, हाँ जी. sir, we will not do the second question, seventh question, right? To calculate tax, GST, income tax. हाँ हाँ कोई बात नहीं. वैसे आपको ये बेसिकली ये क्वेश्चन आएगा कैसे आपको, अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे स्लैब्स भी मेंशन की होंगी. ये सीधा नहीं आ जाएगा कि इनकम टैक्स आप कैलकुलेट कर दो. जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता है दैट इज कि अगर स्टूडेंट्स 90% से अबव है तो उसको A+ ग्रेड देना है, 80 to 90 है तो ये ग्रेड देना है. तो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ऑन दैट इज इनकम टैक्स कैलकुलेट करो. वहां पे स्लैब्स दी होंगी एंड द क्वेश्चन विल बी इलैबोरेटेड. तो बेस्ड ऑन दैट आप लोगों ने कैलकुलेट कर. ठीक है, डायरेक्ट इनकम टैक्स कैलकुलेशन पे नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि इनकम टैक्स की स्लैब्स कौन सी हैं कौन सी नहीं है. सो हाउ विल बी एबल टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स प्रॉपर. ठीक है, और कोई डाउट है आपको? In MCQ based question you will find the small codes whose output you have to determine. Clear? So you should be good in programming also. ठीक है, कैसे उस कोड की ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा. एंड बाकी जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है दैट इज उसमें तो सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स ही हैं हमारे पास. यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. हाँ जी हाँ जी. यस सर एक क्वेश्चन है, ये स्टार से जो राइट से शुरू होते हैं इस तरफ से, फिर पिरामिड बनता है उनका ऐसे, जो राइट से शुरू होते हैं लेफ्ट से नहीं. बनाओ अपनी कॉपी पे बनाओ कॉपी पे बनाओ डायग्राम और शो. जी.
सर ये इट्स लाइक दिस। ठीक है ठीक है ठीक है। ये राइट से शुरू होता है। चलो मैं बनाता हूँ इधर डायग्राम ना, फिर आप मेरे को बताना कि which one is the correct one. तो आपने इस साइड से शुरू किए हैं या रिवर्स है इसका? ये तो सिंपल है। नो सर, इस साइड से नहीं, दूसरी अच्छा साइड दी अदर साइड ठीक है। से। यस इस तरह की ट्रायंगल फॉर्मुलेट करनी है। यस और क्या ये है बेसिकली? तो ये क्वेश्चन में क्या है बेसिकली नो, बेसिकली इसमें एक लूप और लगेगी वेयर यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द स्पेसेस। मैंने पहले भी बताया था इन स्पेसेस का हमने ध्यान रखना है। ठीक है तो सर, ये हमने क्लास में भी किया था, फिर मैंने जुपिटर नोटबुक नहीं नहीं पर कोई बात किया नहीं कोई बात नहीं और हो अगर नहीं तुम रहा वहां पर। कोई बात नहीं, ये सारा प्रैक्टिस ही होगा। दैट इज इजी किसी लिए नहीं है। लेट्स से we ask the user to input the number of rows, n is the integer, and we ask the user to input the enter the number of कितनी रोज चाहिए उसको। ठीक है जी। and then is we just need a loop for I in range n। ठीक है, एक हमें पहले क्या करना है, पहले हमें स्पेस चाहिए लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो उसके लिए एक हमें लूप लगाएंगे फॉर j इन रेंज, और वो कम होती जा रही है, वो जो रेंज है दैट इज इट इज बिकमिंग लेस एंड लेस इन ईच स्टेप। सो दैट इज n माइनस आई, और ये मेरे हिसाब से +1 तक चलेगी। ठीक है, एक हमने स्पेस प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम ये स्पेस डाल के और कॉमा एंड का यूज कर लेंगे, बिकॉज हमने एक लाइन में इसको खत्म भी करना है। ठीक है, और उस स्पेस के बाद हमने क्या करना है, फॉर के इन जितनी रोज हैं उतने हमने प्रिंट करवाने हैं वो। ठीक है, तो दिस इज i+1 तक ले जाते हैं इसको, and print what we have to print, we have to print a asterisk, and is equal to, थोड़ा इसको इलेबोरेट कर लेते हैं पहले। फर्स्ट वी गो विद द आउटपुट, इसकी आउटपुट कैसे आती है, एंड लास्ट पे ये स्पेस की नेक्स्ट लाइन। सो लेट्स से वी हैव 5 नंबर ऑफ रोज, एंड ये हमारे पास क्या बन गया, ये ट्रायंगुलर शेप बन गई। ठीक है, बता सकते हैं इसको हम कैसे, मैं इसकी रेक्टेंगल कैसे बना सकता हूँ? हल्का सा कोड में चेंज होगा, जस्ट मेक इट ट्राई दिस फॉर एवरीवन। ये भी मैं बता देता हूँ, इस लूप में से ये के वाली जो लूप है, इससे आउटपुट ठीक होगी। हाँ जी हाँ जी। सर, फिर +1 नहीं आएगा, अकेला आई आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे क्या इनपुट किया था, 5 किया था ना, तो 1 2 3 4 5 रोज ठीक आ रही है, लेकिन ये बीच में ये वर्टिकल नहीं आ रही हमारे पास ये आउट। तो ये अगर हम कौन सी स्पेस, ग्रुप में चेंज होना है? स्पेस है। ये स्पेस हमने डाली हुई ना, स्पेस, ये स्पेस हमने रेक्टेंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से डाली हुई। तो हमें ये इस तरह की ट्रायंगल नहीं चाहिए,
let's say we go with the 6, so you see here, ठीक है, वो स्पेस से वो दूसरी तरह की ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसमें आपको याद रखने की जरूरत है स्टेप्स। दिस इज फॉर द नंबर ऑफ रोज के लिए है, ये स्पेसिस के लिए है, ये मैकेनिज्म जो है स्पेस के लिए है, और ये स्टार के लिए। i+1 क्यों लिखा हुआ है? i+1, यस कोई बताएगा ये i+1 किस लिए है? वाई वी हैव रिटन दिस लूप टू i+1? सिंपल सी बात है, आप इसको i के लिए चला के देखो। जब आप इसको i के लिए चलाओगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया, तो यू फाइंड हियर देयर आर 4 रोज आर देयर, 1 2 3 4। तो मेरे को 5 रोज के लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव मेड इट i+1, आपको पता है क्योंकि अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड हियर इन द रेंज मेथड। तो आप इसको रन करोगे, नाउ यू एंटर हियर 5, यू विल फाइंड हियर द 5 रोज आर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? यस सर वो जो क्वेश्चन रवनीत ने पूछा था, दैट चेक वेदर द स्ट्रिंग्स बिगिंस विद अल्फाबेट और नॉट, फिर उसमें हम स्ट्रिंग स्प्लिट का भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, मेरे को तो उस अभी क्वेश्चन क्वेश्चन जो मिला ही क्वेश्चन नहीं। वो क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन शी आस्क्ड दैट चेक वेदर द स्ट्रिंग्स बिगिंस विद अल्फाबेट और नॉट, उसमें हम स्ट्रिंग स्प्लिट का भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, स्ट्रिंग स्प्लिट का भी हो जाएगा, देयर आर मल्टीपल वेज आर देयर। सर आई हैव डन, जैसे कि पहले आई हैव चेक की वेदर मतलब नंबर इनपुट करा दिया मैंने, जो भी मतलब डिजिट अल्फाबेट सॉरी, एंड सर देन आई हैव चेक कि पहले अगर मतलब पहले मैंने चेक किया कि जैसे एक सेंटेंस है ना, तो उसके बीच में अगर वो वर्ड आता है तो वही फर्स्ट वर्ड को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। फिर सर मैंने चेक किया कि पहले स्पेस आती है, फिर स्पेस के बाद वो डिजिट आता है। सर फिर मैंने काउंट को मतलब अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद सर मैंने यहाँ ऊपर या एंडिंग में कंडीशन लगा दी कि अगर जो फर्स्ट वर्ड है ना, जो मतलब S0, अगर वो उस वर्ड के इक्वल है तो काउंट में 1+ हो जाए, वरना काउंट मतलब वही रह जाए। तो उसके हिसाब से सर आ गया आंसर। अभी आई वाज चेकिंग, सो आंसर आ गया। हाँ ठीक है, दैट इज हियर यू हैव टू गो विद द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जैसे पुश भी सजेस्टिंग विद द स्प्लिट फंक्शन, सो देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द सेम प्रोग्राम। क्लियर? तो प्रोग्रामिंग में तो ये है, दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग इज देयर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, जिसका भी जिस तरह का लेवल है। क्लियर? we can't say that everyone is at the same level, but the one thing is very sure that in programming you need a lot of प्रैक्टिस आल्सो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स को हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। ये तो हमें एक टेंटेटिव लिस्ट दी हुई है कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, बट दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट बेसिकली कंटेन टू दिस सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर आई डोंट नो अबाउट स्प्लिट फंक्शन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट वंस? स्प्लिट मेथड बेसिकली, तो स्प्लिट बेसिकली हमने यूज किया था उसको, बट आई थिंक दैट इज द नॉट पार्ट ऑफ द दैट वेरी सिलेबस। प्रोग्राम के अंदर हमने यूज कर लिया था उसको। ठीक है, यूज कहाँ पे किया था इसको आपने? डिक्शनरी में? और लिस्ट, लेट्स से वी हैव लिस्ट एंड we have so many. Yes,
इसमें तो लिस्ट में तो नहीं ये मेंशन किया हुआ है फंक्शन स्प्लिट फंक्शन। Because like Python is a very rich library. So let's try it out this. Okay, so this is just to basically based on the space is it splits. Again, I just remove this space here. ठीक है, तो जहां जहां पे ये स्पेस आएगी उसको अलग अलग। Excuse me, sir. I हाँ can't जी, see the screen in which you are writing. ओके। अभी आपने पूछा था विद रिगार्ड टू द स्प्लिट, Yes. नाउ यू एबल टू सी द स्क्रीन ना? Yes, sir. Now I am. ठीक है, तो जैसे ये है हमारे पास, दिस इज द टेक्स्ट दैट वी हैव, तो जहां जहां पे ये स्पेस आएगी इट स्प्लिट्स दैट बेसिकली वर्ड फ्रॉम दैट साइड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस को रिमूव करता हूँ, वेलकम टू, ये स्पेस रिमूव की, सो दिस नाउ काउंट्स स्पेस टू एज ए सिंगल वर्ड हियर लाइक दिस। तो स्प्लिट फंक्शन splits the basically sentence wherever it encounters a space। ठीक है, like this wherever it basically counts it। So split function is basically used mostly for string based program, जैसे आप जो प्रोग्राम जिसकी बात कर रहे हो। ठीक है, जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स दैट वी हैव, सो वेरी जो बेसिक प्रोग्राम है हमारे पास, दैट इज विच आर बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग्स, दैट इज this is to count the number of vowels, to print the word starting with a particular alphabet a user has entered a string, clear, to print the number of occurrences of a alphabet, so to print ये multiple, ये तो number based आ गया। so these are the few three basic programs which are related to string based, then few are list based, and if you look at the list there are huge number of programs are there, multiple to print the n multiple, this is I think very simple program is there। to calculate profit loss for a given cost and sell price, ये calculate कर सकते हो, this is the fifth program, someone let's try this one out, the very simple program is to calculate the yes, आप भी करो try on your side also। the program to calculate the profit loss for a given cost and sell price, so two things are given, cost and sell price, and you have to calculate the what is the profit has been attained and what loss has been attained, do this।
कैसे आप ध्यान रखोगे कि किस सिनारियो में हमें प्रॉफिट है, किस सिनारियो में हमें लॉस है, तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर? हाउ विल बी एडजस्टिंग दिस इन आवर प्रोग्राम? If sale price is greater than cost, तो सर प्रॉफिट है. अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो then it is loss. So we go with the if condition. If sell price is greater than cost, so we say that profit is equal to sell price minus cost, and we try to print the profit. मैसेज भी दे देते हैं. Profit is this, and the other scenario is so we say that now the cost is bigger minus sell price. So profit is this much, and if the cost is 1200 and sell price, okay, so the loss, and we can have we can adjust the third scenario also. If we have don't profit and loss, so how will be adjusting that? अगर प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, मींस दे आर इक्वल. हाँ जी, यस पुश. सर फिर हम एलिफ का यूज करेंगे. हाँ जी, एलिफ एंड देन फिर हम एलिफ का हाँ, यूज एल्स तो देन एल्स. हाँ चलो, मैंने एलिफ डाल दिया. एलिफ में क्या लिखूंगा? Then you will write cost is greater than sell price. Then फिर इसके नीचे else हम डालेंगे. फिर we will print that cost price and sell price are equal. And else just print the message that there is no profit, no loss scenario is there. So just looking at the, ठीक है. बाकी आप प्रोग्राम में कोई कंसेप्ट में आपको कोई डिफिकल्टी है, सो वी कैन डिस्कस दैट आल्सो. ठीक है. ठीक है. विद रिगार्ड टू इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज इट इज जस्ट बेस्ड ऑन थ्योरी. ठीक है. एक तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स वी हैव. टू कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज देयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? हाँ जी, यस पुश. Sir, system softwares are the software that operates the computer, and without them, computer will not work. And application softwares are the software which work on the top of the system softwares. वो तो ठीक है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कोई एग्जांपल, एनी एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन Any सॉफ्टवेयर? Word, Excel, these all are the application softwares. they are System basically software. they are, जैसे ये नेक्स्ट लिखा ना, जेनरिक एंड स्पेसिफिक पर्पस. Yes, ये generic जो जेनरिक that is एग्जांपल जो आप बता रहे हैं ना, generic. वर्ड, एक्सेल, दिस इज जेनरिक सॉफ्टवेयर.
And the specific are those like school management softwares, Yes, yes, yes. websites. ठीक है, जैसे पेरोल के लिए हो गया हमारा, सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, बिल जनरेट के लिए कर रहे हैं. सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड द स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. Sir, system utilities are their device driver, operating system. These are यस, कंपाइलर है, Ubuntu, इंटरप्रेटर है, लिंकर है, लोडर assembler. है. Yes, yes. So basically, the software which help the system to run, they are part of system software, and the application software is more nearer to the user, and it basically caters the need of a user, whether they are generic softwares or they are specific purpose softwares. And similarly, there is a topic that is computer memory. So computer memory we bifurcate it to two categories. Clear? One is the main memory, and second is the secondary memory. So what is the difference between main memory, primary memory, and secondary memory? हाँ जी बोलो. Sir, primary memory is the main memory like ROM and RAM. Secondary memory are used like it is there for the permanent purpose to store the data permanently for future use, like HDD, SDD, magnetic tapes. ओके. एक हमने डिस्कस किया था पॉइंट, दैट वाज द पॉइंट वाज रिलेटेड टू कैशे मेमोरी. वो क्या थी कैशे मेमोरी? Sir, cache memory is a special type of memory. It's a high-speed memory which is placed between a processor and RAM. It speeds up the operations because the speed of the CPU is more than that of the RAM. So due to the RAM, the CPU may have to slow down. So cache memory stores all the files which are required mostly Yes, which temporarily. are required frequent. So the Yes, CPU fetches the data from cache. If the requirement is met, then it takes the data from cache. If not, then it has to access the RAM. यस यस. वो बेसिकली क्या करती है, एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर देती है. क्लियर? बिकॉज इफ दी समथिंग इज, आप सिंपल सी बात है, कोई आपके आसपास चीज पड़ी हुई है, कोई आपसे दूर पड़ी हुई है, जो आपके पास है, दैट विल रिड्यूस योर एक्सेस टाइम. क्लियर? सो दैट इज ए वेरी सिंपल लॉजिक बेस्ड लॉजिक इज देयर. और एक जो हमने विद रिगार्ड टू दी सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ा था, एसएसडी डिस्क, दैट वाज that was solid state drive. Nowadays that is used. It has larger storage and faster access. फास्टर एक्सेस. ठीक है. अगर आप नया लैपटॉप बाई करते हो, सो इफ दैट इज एसएसडी बेस्ड है, तो अगर लेमैन को कैसे पता चलेगा, दैट इज इसकी कॉस्ट एस्केलेट कर जाएगी, इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई. और अगर इसकी हमने एप्लीकेशन नोट करनी है कि जैसे हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो a lot of time बूटिंग में a lot of time लगता है. तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में दैट टाइम इज रिड्यूस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड वो सीधा ही आपका सिस्टम आप ऑन करोगे, सो योर सिस्टम विल गेट स्टार्ट ओवर. सो दैट इज वन मोर डिफरेंस इज देयर. और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज दी डाटा एंड इट्स, ठीक है, डाटा कैन बी डिलीटेड, वेदर इट इज, वी कैन समटाइम्स इंटेंशनली समवन कैन डिलीट द डाटा, और समटाइम्स by mistake we delete the data. So how to recover that very data? तो इसके लिए एक पॉइंट था, that is how we can recover that data. ठीक है. जब भी हमने किसी भी डाटा को रिकवर करना है, so that data should not be overwritten. अगर आपने उस डाटा के ऊपर कुछ और कॉपी पेस्ट कर दिया उस पेज के ऊपर, so then the recovery is not possible. So this is the first point, is that when we have to recover the data, we should not overwrite the, जहां से डाटा वो डिलीट हुआ है उस पेज के अंदर हम कुछ और ओवरराइट ना कर दें, कोई और ऑपरेशन अप्लाई कर दें. If it is not done, then we have different mechanism how to recover that very data. और एक जो इसके अंदर जो एक और पॉइंट आ जाता है, बैकअप. ठीक है. तो बैकअप के बारे में कुछ पता है? what is this term is backup is? सर बैकअप इज जनरली डेटा को स्टोर करना, जैसे व्हाट्सएप पर बैकअप होता है. हाँ, स्टोर कर ड्राइव में रख लेना ऐसे. हाँ. ठीक है. तो बैकअप, आप जो देखो, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप. बैकअप का क्या पर्पस होता है? जैसे अगर हमने बैकअप को एक्सप्लेन करना है, तो आर यू एबल टू व्यू दिस स्क्रीन? ये पेंट वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है. Yes, sir.
मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई थी कि जैसे लेट्स से यू हैव ए वेबसाइट, आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट क्या है, वो सर्वर के ऊपर, दिस इज लेट्स से दिस इज योर सर्वर, ठीक है, आपका सर्वर मतलब ये नहीं कि आपने सर्वर खरीदा हुआ है, दैट इज यू टेक दी स्पेस फ्रॉम दी सर्वर, ठीक है, आपको स्पेस मिल जाएगी उस सर्वर के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ आपकी जो वेबसाइट है दैट इज देयर ऑन दैट सिस्टम, ठीक है, सो यू नो दैट वेबसाइट इज एक्सेस 24/7, लेकिन कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो अपना टेक्निकल स्टाफ जो है वो 24/7 एक्टिवेट रखेगी, ठीक है, तो लेट्स से ये आपकी हार्ड डिस्क जो है ये क्रैश हो गई है आपकी हार्ड डिस्क, तो क्या होता है, देयर इज ए स्टोरेज मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है कि वहां पे 2 हार्ड डिस्क रखते हैं एट ए टाइम, ठीक है, हमेशा जो आपकी वेबसाइट एक्सेस होगी वो इसी हार्ड डिस्क से एक्सेस होगी, बट देयर इज a mechanism that whenever this hard disk crashes the load is transferred to the other hard disk, ठीक है, तो क्या है, जो यूजर है जो आपकी वेबसाइट को यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वेबसाइट चलती रहेगी, ठीक है, बिकॉज इस हार्ड डिस्क का बैकअप है, यू हैव ए सेपरेट बैकअप, और इन द मीन टाइम यू कैन रिपेयर योर हार्ड डिस्क, जैसे भी आपने इसको रिप्लेस करना है रिप्लेस कर दो, इसको आपने रिपेयर करवाना है रिपेयर कर दो, सो बैकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक्स हैं, शेयर मार्केट है, अब शेयर मार्केट में मैंने काफी बार आपको एग्जांपल दिए, दैट इज इफ देयर इज एनी टेररिस्ट अटैक, किसी भी तरह का अटैक है, तो शेयर मार्केट का बंद नहीं होगी, शेयर मार्केट इट्स हैव ए मल्टीपल रेप्लिका, मे बी एट चेन्नई आल्सो, अहमदाबाद आल्सो, तो उसका लोड ट्रांसफर हो जाएगा ऑन दी अदर साइड्स, क्लियर, सो फॉर दी जैसे बैंक है, तो बैंक के लिए बैकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दे कैन नॉट रलाई कि एक उसका जो सर्वर है वो डाउन हो गया तो आज सारा दिन काम नहीं होगा, सो दे हैव ए बैकअप प्लान एंड नो द लोड इज शिफ्टेड टू देयर बैक, सो दिस वाज अबाउट दिस वन, और ये जो इनपुट डिवाइसेस है आउटपुट डिवाइसेस, आई थिंक दैट डजंट नीड एनी टू मच एलेबोरेशन, ठीक है, और यहाँ पे जो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स भी पढ़ लेना आप लोगों ने, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, और जो एक ब्लॉक डायग्राम है, तो ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो जो भी कंपोनेंट्स हैं इनसाइड दी कंप्यूटर, हार्ड डिस्क है, पावर सप्लाई होगी आपकी, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, तो their idea should be there and their interconnection means that how these devices are connected with each other, तो जो हमने ये ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन किया था, तो उसमें ये ऑलमोस्ट सारी जो उसकी मोस्टली मेजर जो वर्किंग है कि इनपुट डिवाइसेस का सीपीयू के साथ क्या कनेक्शन है, फिर सीपीयू का आउटपुट डिवाइस के साथ क्या कनेक्शन है, सो यू नीड बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ दीज, ठीक है, बाकी आप कोई भी और कोई डाउट है सो यू कैन बेसिकली आस्क द क्वेश्चन, दैट्स नॉट ए इशू, ठीक है, और मेरे को भी बेनिफिट है दैट आई रिफ्रेश इफ आई गेट ए गुड क्वेश्चन, तो थोड़ा मेरे को भी रिवाइज करना पड़ जाता है, एंड दैट्स नो म्यूचुअल बेनिफिशियल फॉर योरसेल्फ आल्सो, ठीक है, सो स्टिल यू कैन गो थ्रू एंड रिफ्रेश योरसेल्फ, ठीक है, आप पढ़ लो एक बार, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो ठीक है, एक आप बता दो, अगर कोई और पॉइंट आपका कोई मिसिंग है आप वो बता दो, वी कैन डिस्कस दैट, एंड हाँ जी पुष्प। सर वो कन्वर्जन जैसे केबी से एमबी में कन्वर्ट करना वो आएंगे ना, वो इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे को नहीं लगता ये कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है, जैसे जैसे आपका 1 MB इज इक्वलेंट टू, ये किसके इक्वलेंट है, ठीक है, तो ये तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जो भी जिसने भी आईपी पढ़ा है उसको कल को यही ना पता हो कि ये स्टोरेज की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, ठीक है, सो जस्ट टू रिफ्रेश दी पॉइंट, ठीक है, तो बेसिक यूनिट है हमारे पास, सबसे पहले जो आ जाता है 0 and 1s, सो दीज आर दी बिट्स वी हैव, तो बिट्स की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट्स, बिट्स, दिस BI स्टैंड्स फॉर बाइनरी, ठीक है, बाइनरी डिजिट, तो ये 0 1 क्या है, 0 1 आर दी बाइनरी डिजिट्स, ठीक है, फिर इसके ऊपर जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज 1 बाइट, 1 बाइट इज इक्वलेंट टू 8 बिट्स, ठीक है, फिर इसके ऊपर जो मैकेनिज्म है वो तो सिंपल ही है, दैट इज 1 KB, सो 1 KB यू नो दैट, कई बार यहाँ पे ये जो B है ना, B दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे तो ये तो बाइट को रिप्रेजेंट कर रही है,
तो आपको पता है अगर इसको बिट्स में कन्वर्ट करना है तो लास्ट पे आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कई बार ये कनेक्शन होता है वो बिट्स पर सेकंड होता है, नो, जैसे आप कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हो ना, इंटरनेट कनेक्शन, तो उसमें ये दिस केबी स्टैंड्स फॉर की वो बिट्स है या बाइट्स है, सो यू शुड बी केयरफुल फॉर दैट फॉर कैलकुलेशन। तो मोस्टली हम इसको बाइट ही लेते हैं, वी ट्रीट इट एज 1 KB इज 1 किलोबाइट, सो दैट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। फिर इसके अंदर फिर तो मैकेनिज्म सेम ही है, दैट इज 1, इसके ऊपर 1 MB है, दैट इज इक्वल टू 1024 KB, ठीक है। तो ऐसे ये मैकेनिज्म आगे आगे चलता रहेगा। मेगाबाइट के बाद क्या है? सर GB, हाँ गीगाबाइट। हाँ, गीगाबाइट, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट, देखो इसके बाद शायद TB। हाँ, इसके बाद है टेराबाइट। यहां तक तो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है, यहां तक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है दैट्स अपॉन योर इंटरेस्ट दैट यू वांट टू रिमेंबर द अदर यूनिट्स और नॉट, बिकॉज दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स। बाकी आपने देखी है बुक के अंदर तो वो बहुत आगे तक गया हुआ है, सो मेनी टर्म्स हैव बीन एलैबोरेटेड, बट ये बेसिक इतना तो हर किसी को आना चाहिए कि ये क्या कैलकुलेशन की हुई है एंड हाउ दिस इज डन। सो और कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर? सो यू स्टिल कैन वर्क ऑन दिस बेसिकली प्रोग्राम्स। अगर आपको लगता है कि वी कैन हैव ए क्लास ऑन संडे, अगर आप कोई 2-3 प्रोग्राम हो गए, सो वी कैन बेसिकली अरेंज ए क्लास ऑन संडे आल्सो, नॉट ए इशू। क्लियर? एंड देखो, असली जो इसमें काम करने वाला काम है दैट इज द प्रोग्रामिंग, वी डोंट लुक एट द सिलेबस। अगर हम सिलेबस देख लेंगे तो फिर तो पाइथन हमारी खत्म हो चुकी है एंड वी हैव नो इंटरेस्ट लेफ्ट इन पाइथन। सो इसके अंदर जो मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज, अगर आप किसी भी एरिया में जाते हो, इफ यू गो इनटू रिसर्च, आप किसी भी एरिया में जाते हो, MBA करने जाते हो आगे, एंड नो दिस पाइथन लैंग्वेज इज द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट विल बी हेल्प यू आउट इन ऑल द डायरेक्शंस। डाटा एनालिसिस है, डाटा साइंस है, चाहे कोई इंजीनियरिंग वाला प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोग्रामिंग करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई डिवाइस आप बना रहे हो आप, तो वहां पे भी नो अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग इज डन, AI बेस्ड प्रोग्रामिंग इज डन हियर, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, दैट इज हाउ यू वांट टू लर्न एंड गो विद पाइथन। यस रवनीत, और कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। सो इफ यू स्टिल हैव एनी कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट आएगा आपको, सो प्लीज शेयर इट विद मी, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है बेटा? Okay, सो sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।